Hello students, very good morning. Today we are going to start chapter number 2, multiplication and division of integer. Okay, so integer, basically what is integer? Integers are the number which consist of both negative and positive numbers. The combination of negative and positive numbers are termed as integer. So basically we represent it on a number line. Okay, so 0 is the start point for both. There are two people, there are two persons. One type are termed as positive, another as negative. So 0 is the starting point of both. Now for example, 1, 2, 3, 4 and 5. So these are the positive numbers, right? And these are the negative numbers. And so on and so on. So basically, if it comes to integer, just compare it with the life. You know, in life what we have? We have negative numbers and positive. In the same way, we have negative people and positive people. So now, positive people are always right? So positive number comes to the right side. And negative people cannot be considered as right. So ultimately they are left with left. Okay? So in the left side, it will always be negative integer, and to the right side, it will always be the positive integer. Okay? So now multiplication, the first subtopic of ours will be multiplication of integers. So now multiplication of integers. Okay, multiplication of integers, the sign of multiply is given by this cross, a small cross. Multiplication can also be called as product. Product means multiplying something. Okay, so now multiply and multiply. So if there are two negative integers, that is minus into minus, two negative integers, that is minus into minus. So product of two negatives, that is product of two negative means minus multiply by minus. So it will give you a plus, and then plus into plus will give you plus. It means that if both the signs are same, the answer will always be positive. Okay? If both the signs are different, the answer which we will get will be of negative. So now why this? Let me explain it to you properly. If two same people, they come together, then what will happen? Everything will match, everything. So basically product of two negative integer will always be a positive number. Let me elaborate it more. और अगर दो सेम तरीके के लोग एक साथ में रहते, दो सेम, जैसे आपको भी पिज्जा पसंद है एंड आपके पार्टनर को, आपके फ्रेंड को, आपके ब्रदर को, anyone it might be. If you both like pizza, then दोनों को मजा आएगा साथ में, तो it will be positive side. Okay, so minus into minus will always be a plus sign, and plus multiply by plus will also form a plus sign. Now let us talk. You and your brother goes to a good restaurant, and there you called for dosa, masala dosa, and even your brother like masala dosa. Then दोनों की मैच हो रही है सारी चीजें, तो आप लोग को अच्छा लगेगा.
if you are watching छोटा भीम and your brother is also watching छोटा भीम, तो मजा आ रहा है ना? तो दोनों की सोच मिल रही है. तो since the perception of both of you people is matching, the ultimate result will be of plus. Okay? So now plus and plus again same sign, मतलब याद रखना कि दोनों का नजरिया सेम है. बोल रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली ले लेते हैं. प्रैक्टिकली लेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों साइन सेम है तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड प्लस इंटू प्लस विल ऑलवेज फॉर्म अ प्लस. बट सोचो आपको देखना है छोटा भीम और आपका भाई देख रहा है क्रिकेट मैच, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? सो इफ द परसेप्शन डजंट मैच, और अगर हमारी सोच नहीं मिलेगी तो व्हाट इट विल फॉर्म? अ नेगेटिव. एंड यहां पर भी प्लस इंटू माइनस रहेगा तो भी क्या आ जाएगा? माइनस. बहुत जरूरी है आप लोगों को ना, ये बेसिक्स है ना, ये समझना बहुत जरूरी है. एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग? द बेस्ट थिंग इज कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी व्हेन यू विल डू ना, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स मींस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर. तो डिवीजन का भी प्रॉपर्टीज, दीज आर टर्म्ड एज प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ आर सेम. यानी कि माइनस डिवाइड बाय माइनस, प्लस डिवाइड बाय प्लस, गिव यू सेम आंसर. ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि दोनों दिन सेम काम कर रहे हैं तो मजा आएगा. ठीक है ना? हमेशा मैथ्स को है ना एक रियल लाइफ से मिला तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा. यू वोंट फाइंड इट बोरिंग एनी मोर, ट्रस्ट मी. क्यों? हमेशा अपने दिमाग में डाल के रखना. ठीक है ना? व्हाट अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग इज कि आप और अगर नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मतलब सेम सोच के लोग साथ में रहेंगे ना, सेम सोच के तो हमेशा, मतलब आपको देखना है WWE और आपके डैडी को देखना है रामायण. ऐसा नहीं कि आपको पसंद नहीं है, बट द थिंग इज कि आपका भी मन नहीं है देखने का, तो सोच मैच भी क्या नहीं. तो इफ द थिंकिंग, इफ द परसेप्शन मींस नजरिया, इफ ये नजरिया सेम नहीं है तो नेगेटिव, तो तुमको दिमाग खराब होगा. इफ यू आर वाचिंग छोटा भीम एंड योर ब्रदर वांट्स टू वॉच क्रिकेट, और अगर छोटा भीम उसके ऊपर चालू हो गया तो ब्रदर को बुरा लगेगा. बुरा मींस नेगेटिव. गॉट इट? हाँ, देख लो एक बार अच्छे से. तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन पार्ट. हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिस सेट 8. सी यू नो ड्यूरिंग योर अर्ली चाइल्डहुड योर टीचर यूज्ड टू टेल यू कि कम ऑन मग अप ऑल द टेबल्स, टेबल ऑफ 10, 12, 13, 14. So basically here multiplying the two numbers is very easy thing. Ignore the negative sign. Ignore the negative sign. इस negative sign को ignore कर दो. If आप इस दोनों negative sign को ignore करते हो, so what will be the basic thing you know? Ignore the minus sign. Ignore. 5 multiplied by 7. तो 5 sevens are 35. Now remember the property. 5 is negative, even 7 is negative. So minus into minus will give you a plus sign. तो अब वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ? The thing is कि it depends upon the perception. है ना? 5 को जो चीज पसंद है वही 7 को भी पसंद है. तो अगर दोनों चीजें सेम है तो आंसर पॉजिटिव. याद रखना दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव. बस यही याद रखना. So now second, minus 9 into 6. Signs are different. दोनों का सोच अलग है. The perception is different. तो पक्का चलो पहले ही कर देते हैं. 9 6 54. और साइन अलग है तो क्या आ जाएगा? माइनस. ठीक है? Then third one, 9 into minus 1. So again 9 4s are 36. Fourth one, 8 into
into -7, 8 7 जा 56। अभी यहाँ पर आप देखो ना हो रहा क्या है, थिंकिंग ऑफ बोथ 8 and 7 इज डिफरेंट। कैसे? 8 को पॉजिटिव रहना पसंद है और 7 को नेगेटिव रहना, तो दोनों की सोच अलग है, द थिंकिंग इज डिफरेंट, द परसेप्शन इज डिफरेंट, सो द अल्टीमेट आंसर विल बी डिफरेंट। याद क्या रखना है? साइन सेम है, इफ द साइन आर सेम द आंसर विल बी पॉजिटिव, इफ साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है? देन -122 into -1, so minus into minus will be, दोनों का साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा, 124 into 1 will be 124 अगेन। दोनों की साइन सेम है, दोनों का थिंकिंग सेम रहेगा, है ना? तो माइनस इंटू माइनस विल गिव यू अ बिग प्लस। नाउ 7 2s are 14, 7 1s are 7, 8, then coming to some number 7, 63 into 7, again minus into minus, same signs will give you a positive, so 7 3s are 21, 7 6s are 42 44, then next is some number 8, -7 into 15, -7 into 15, साइंस आर डिफरेंट, दोनों की साइन अलग है, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस, यानी कि 15 जो सोच रहे हैं 7 वो नहीं सोच रहे हैं, यानी कि 15 को छोटा भीम देखना है और उसको क्रिकेट देखना है, दोनों भाइयों की सोच नहीं मिली, आंसर विल बी नेगेटिव, राइट? 7 5s are 35, 7 1s are 7, so here we end our practice set number 8. So students, now coming to practice set number 9. Here what we are supposed to do is we have to solve what? Division, integers का division. So the first one is -96 divided by 16. Now remember what I said during the introduction part. What I said is कि check out on the signs. Now sign of 96 is negative and the sign of 16 is positive, यानी कि 96 कुछ अलग सोच रहा है, 16 कुछ अलग सोच रहा है। अब दोनों की सोच अलग है, दोनों की सोच क्या है? अलग है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? दोनों की सोच अलग है तो क्या करेंगे हम लोग? नेगेटिव लिखेंगे या पॉजिटिव? नेगेटिव लिखेंगे, है ना? बार मैं नहीं सेम एग्जांपल दूंगा। आप गए, आपने मंगाया एक चीज बर्स्ट पिज्जा, बट आपका भाई बोल रहा है कि नहीं मेरे को ये वाला पिज्जा नहीं, मेरे को दूसरा वाला पिज्जा चाहिए, तो दोनों की सोच मिल रही है ना? सो बेसिकली इफ योर परसेप्शन डजंट मैच देन द साइन विल बी नेगेटिव, यानी कि साइन और अगर अलग अलग रहेगी तो क्या हो जाएगा? आंसर नेगेटिव आएगा। सो -16 डिवाइड मींस अपॉन 16, हम लोग को इसको किसमें कन्वर्ट करना है? लोअर फ्रैक्शन में। Of course, since both are even number, it's fixed it will be divisible by 2, but try to solve it at least। देखो मैं आप लोग 2 से तो नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग 7 स्टैंडर्ड में आओगे, लेटर स्टार्ट विद 4, चेक करो कि 4 में जा रहा है क्या। पहले इसको देखते हैं, 4 2s are 4 4s are 4 4s are 16, so it is 24 upon 4 and 4 6 are 20. The answer will be negative. The ultimate answer will be negative. Why? Because the signs are different. दोनों के साइन अलग है ना, दोनों की सोच अलग है। याद रखना, साइन सेम, आंसर प्लस। जो तुमको चाहिए वही भाई को चाहिए। The thing which you desire is
is also supported by your brother or maybe your sister, whomsoever it may concern. हमेशा याद रखना है, अगर साइन सेम है तो आंसर प्लस आएगा, सोच सेम है, ऐसे याद रखना है. Now 98 divided by minus 28. So 98 divided by minus 28. Okay. So now, of course, we can start with 2. We can start with 2. But you know, always, since now you are a grown-up child, आप बड़े हो गए, you are in 7th standard. So remember one thing. Try to solve it with some different thing. Like try it with 7 से कभी ट्राई करो. क्यों? क्योंकि ये देखो 7 4 28 होता ही है. 7 1 7, 7 4 are 14. So it will be 7 upon 2. Okay? देख लो आप लोग. तो स्टूडेंट, now question number 3, minus 51 divided by 68. Okay? So now one side is negative, one is positive. Different side, different perception, यानी कि different thinking, different नजरिया, the answer will be negative. Now here at unit place पे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, means it cannot be divided by 2. पक्का है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आता है. तो ट्राई करते हैं कि 51 के टेबल में कौन जा सकता है. या तो 17 के है ना, 17. If you divide this with 17 3s are 51. 17 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं so we get 51. बट वो इसमें भी जाना चाहिए ना, तो जरा देखते हैं. 7 का ऐसा कौन सा टेबल है जब लास्ट में 8 आता रहेगा. 7 4s are, so try for 17 4s are. 7 4s are 28. आया आंसर. तो 74. तो minus 3 upon 4 will be your answer. Okay. So now next sum. Next is sum number 4. Sum number 4 says what? 38 divided by minus 57. So again 38 divided by minus 57. अभी ना बहुत सिंपल और बेसिक है. याद क्या रखना है कि यहाँ 8 है, यहाँ 7 है. It means पक्का it cannot be divided by 2. So try for big numbers. ठीक है? कैसे? 38 देखो किसके टेबल में आता है? 19 2 and now 19 9 के टेबल में 7 कब आता है? 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27. तो 7 आता है. तो try for 19 into 3. Try for 19 into 3. 19 3s are how much? Check करो. It will be 57. So here you have 3. आंसर क्या आ गया? minus 2 upon 3. Okay? So now coming to sum number 4. Minus 85 divided by 20. Again 85 divided by 20. Here we have 5 at the unit place and here 0. तो यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, मतलब पक्का देखो 5 के टेबल में पक्का जाएगा ये. ट्राई करते हैं. 5 4s are 20. 5 1s are 5. बचा कितना है यहाँ पर? 3. 5 7s are 35. तो कितना आ गया? minus 17 upon 4. This is your final answer. Then coming to sum number 6. Sum number 6 says minus 150 divided by minus
25। याद क्या रखना है, यहां पर भी साइन सेम है, सिंस द साइन आर सेम द आंसर विल बी पॉजिटिव। माइनस 150 अपॉन माइनस 50, सेम तरीके के लोग मिले तो नेगेटिव तो हट ही गया, है ना। अब यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कटेगा पक्का। 5 5 are 25, 5 3, तो बचा कितना 30 अपॉन 5, which will give you answer 6. Done. Now coming to sum number 7. What does sum number 7 says? 100 divided by 60. There is neither any negative, so means both are positive. दोनों पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। 100 डिवाइड बाय 60, एक एक जीरो कट गया, बचा कितना 10 अपॉन 6, फाइनली कितना आ जाएगा 2 5 and 2 3. This is your final answer. So now coming to sum number 8. Sum number 8, 9 divided by minus 54, तो 9 upon minus 54. So now this is very easy. एक तो देखो साइन अलग है तो फाइनल आंसर विल बी माइनस। रिमेंबर माइनस को कभी भी नीचे नहीं लिखेंगे, तो व्हाट इट विल बी, 9 ones are and 9 6, so 1 upon 6 will be your final answer. Then sum number 9. Let us check what sum number 9 says. 78 divided by 65. 78. Now there is no need of taking tension for sign. Sign का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि है ना दोनों भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 8 है, तो क्या है ना, तो 2 तो पक्का नहीं होगा, तो ट्राई करो ना किसी बड़े नंबर का। टेबल्स कमाओ यार, याद रखना 11 12 मतलब 11 से लेकर 20 तक के टेबल्स बहुत अच्छे से आप लोगों को खुद से करने प्रैक्टिस। तो देखो 13 5s are 65. Now this is for sure कि 13 5s are क्या हो जाएगा, तो अब पक्का 13 के टेबल में ये भी जाता रहेगा। चेक करो 13 6, क्यों, क्योंकि 6 3 18 होता है ना, तो 13 6 are and 36. So final answer is 6 upon 5. And last one is minus 5 divided by minus 315. Minus 5 divided by minus 315. This is very easy. ये चीज आपको खुद से करनी चाहिए थी। दोनों का साइन सेम है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। साइन सेम है आंसर। अब 5 1 5 6 are 30, 5 3 are 15. So it will be 1 upon 60. Right? Just check it for 1 minute. Now next question is write 3 divisions of integers such that fractional form of each will be, यानी कि the fraction form of it should be 24 upon 5. Any 3 division. It means we have to form 3 division such that the final answer should be this. तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक आइडिया तो जनरल आइडिया, पहले दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, फिर 3 से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, एंड देन 4 से कर दो। किसी से भी कर सकते हो, किसी से भी, क्योंकि देखो बताता हूँ रीजन क्या होगा। 2 upon 2 कट जाएगा, वापस से आंसर क्या बचेगा 24 upon 5। 3 upon 3 कट जाएगा, वापस आंसर क्या बचेगा 24 upon 5। एंड 4 upon 4 भी कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा। ये आप लोग के रेफरेंस के लिए आई एम सॉल्विंग, ओके, आपको बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर यू पीपल का रेफरेंस।
take 2/2, 3/3, 4/4. This is for your reference, not for me. तो मैं अभी ये आप रफ में करेंगे, ये जो पार्ट है ना, आप यू सॉल्व इट इन रफ, इसको आप रफ में सॉल्व कीजिए। तो देखो अब, और अगर करते हैं हम लोग 3 fractions same as 24/5, है ना? Same as 3 fraction whose fractional form is 24/5. So what I told you, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर नीचे दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो क्या क्या आ जाएगा, 24 2 जा 5 2 जा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे तो पक्का आ जाएगा 5 3 जा 15, और इसको 4 से करेंगे तो 5 4 जा 20। ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, 4 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, फिर 4 से करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9। आप किसी भी सेम, बस वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि जो ऊपर रहेगा वही नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सो मैंने आप लोगों को क्या आइडिया दिया था कि पहले हम लोग दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन 3 से एंड देन 4 से। यू कैन, मतलब यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड। आप इसको है ना 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ एक लॉजिक दिया कि कभी भी ऐसा आएगा तो पहले 2 डाल दो, फिर 3 डाल दो, फिर 4 डाल दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। समझे? Again, write 3 divisions of integers such that they are fractional form. Such that their fractional form is -5/7. उसका fractional form क्या रहेगा, -5/7। सेम ट्राई करो ना, पहले हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से। तो याद रखना मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से कर रहे हो, साइन सेम ही रहेगा। तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, then 3 से 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, then 4 से 5 4 जा 20 and 7 4 जा। कितना इजी था, पहले मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 4 से कर दिया। समझ में आया? पहले 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 4 से कर दिया। समझ में आया अच्छे से? Now solving the last question. Last question क्या बोल रहा है? Right? Sorry, the fish in the pond. देखो एक डायग्राम दिया हुआ है नीचे. Kindly check that. The fish in the pond below carries some numbers. Choose any 4 pair and carry out 4 multiplication with those numbers. कोई भी 4 जोड़ियां निकाल कर आप उनसे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई भी। हाँ, इन लोगों ने दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग नंबर दिए थे ना, तो -13 इंटू -15 कर रहे हैं, कोई भी 4 नंबर ले लो, तो आंसर क्या आया 195। सेकंड इन लोगों ने दिया है -24 डिवाइड बाय 9, तो व्हाट इट विल बी -8। यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं। इन लोगों ने इसको दिया है -24/9 यानी कि -8/3। अब आप किसी को भी दे दीजिए ना, किसी को भी। हम लोग को कितने और एग्जांपल्स निकालने, और कोई भी 4 जोड़ियां। तो मैं क्या करता हूं, किसी भी एक जगह से
ये तो एग्जाम्पल था, सम यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ किसी, तो मैंने क्या किया, मैंने निकाल लिया एक फिश से मैंने 90, इतनी सारी फिश है, एक फिश से मैंने क्या ले लिया 30, दूसरी फिश से मैंने कितना ले लिया 9, तो कितना आ गया -170। एक फिश से मैंने ले लिया कितना 12, एक फिश से मैंने लिया 13, कितना आ गया 156। एक फिश से मैंने ले लिया, मैंने एक फिश से फिर लिया 9 और एक फिश से लिया 37, कितना आ जाएगा -333, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड फिर एक फिश से मैंने लिया 15 और एक से लिया मैंने -8 और इसका आंसर बिल्कुल मिल गया 120। ठीक है, तो ये थे 4 एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के। ऐसे ही हम लोग को 4 किसके निकालने, डिवीजन के लिए निकालने। एग्जांपल में हम लोगों ने एक मल्टीप्लिकेशन दिया था, एक डिवीजन दिया था। अब हम लोग 4 डिवीजन के एग्जांपल निकालते हैं, कोई भी 4। एक फिश के अंदर किसी भी नंबर को ले लो, मैं किसी को भी ले रहा हूं, और एक आ गया 12, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -28/12 है ना, तो क्या हो जाएगा 4 के टेबल में ये भी जाता है, 4 के टेबल में 4 7 जाता है और आंसर नेगेटिव। दोनों में से एक साइन माइनस है तो आंसर माइनस आएगा। देन सेकेंड 12 डिवाइड बाय 9, एक जन से 12 लेता हूं, आप कोई भी नंबर निकाल कर सकते हैं, कोई भी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 12/9 यानी कि 3 4s and 3 3s। देन थर्ड लेते हैं हम लोग, कोई भी एक फिश से मैंने 9 ले लिया, एक से ले लिया मैंने -24, क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय -24। अब 3 3s 9 एंड 3 8s 24। एंड लास्ट कोई भी जो आपको मैंने एक जगह से ले लिया -18, एक जगह से ले लिया -27, तो व्हाट विल बी द आंसर, दोनों का साइन देखो सेम है, तो फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव, दोनों का लिए। तो चलिए कितना 18/27। अब 9 2s 18, 9 3s 27। So that's all from today's lecture. अब आपको मैं सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज, लेट अस डिस्कस अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, ठीक है। एक बार हल्का सा रिकैप ले लेते हैं। मैंने बोला था कि आप उसको दुनिया से कंपेयर करेंगे, किसको, इंटीजर्स को। ये रही इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब दुनिया, इंटीजर्स मतलब दुनिया। अब कैसे, 0 से लाइफ स्टार्ट होती है, बराबर। लाइफ कहां से चालू हुई पता है नहीं, कहां खत्म होगी नहीं पता, मतलब दुनिया